Hare Krishna students. Today we will be starting with a new chapter of our book Essential English. Please take out your book and open to page number 27. Chapter number 5, The Talkative Turtle. And it's on page number 27. So, how we gonna read this? I will be reading it paragraph wise and then I will be explaining it to you. Okay? आप सब मेरे साथ parallelly बुक में रीड करेंगे और फिर हम समझेंगे. Open to page 27 and put your finger like this and read with me. Okay? About the lesson. Sometimes your elders and friends tell you what you should not do. They tell you this from your own good. From your own good. But do you always listen to them? Let's read this lesson about a turtle who did not listen to his friends. आपको हमेशा आपके बड़े आपके दोस्त बताते हैं कि आपको कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, पर क्या आप हमेशा उनकी बात मानते हैं? नो. तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि एक टर्टल के बारे में जिसने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी. Once there lived a talkative turtle and a pair of swans in a beautiful lake surrounded by mountains. The turtle and the swans were friends. They would spend all their free time together, telling each other stories and exchanging news and gossip. The turtle especially loved to talk and chatter and always had something to say. इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि एक टर्टल था जो बहुत टॉकेटिव था. टॉकेटिव मतलब बहुत बोलता था और उसके फ्रेंड्स थे. कौन थे उसके फ्रेंड्स? अ पेयर ऑफ स्वान्स. ये उसके फ्रेंड्स थे और ये तीनों ही एक सुंदर सी लेक में रहते थे जिसके आसपास पहाड़ थे. ये तीनों कौन? तीनों, 2 स्वान्स और एक टर्टल. ये तीनों अपना सारा फ्री टाइम एक साथ गुजारते थे, बातें करते थे, एक दूसरे को अपने बारे में बताते थे, स्टोरीज बताते थे और एक साथ रहते थे. और जो टर्टल था उसे बात करना, चैटर करना बहुत पसंद था. उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ रहता था बात करने के लिए. One year the rains did not come and the lake began to dry up. The swans became worried. एक साल क्या हुआ कि बारिश नहीं आई और वो जो लेक था जहां पर वो रहते थे वो सूखने लगा और फिर वो जो स्वान्स थी उन्हें इस बात की चिंता होने लग गई. Next, what if it does not rain at all and the lake dries up completely? Where would we live in that case? Said Mrs. Swan. Indeed, that is a cause for concern, replied Mr. Swan. देखिए, Mr. and Mrs. Swan means they were a pair. One was Mrs., his wife, and the other was her husband. Okay? फिर वो बात करते हैं कि अगर ये लेक पूरा सूख गया तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे. हमारे लिए ये एक चिंता की बात है. Well, I have a plan, said the turtle. Why don't you two fly in search of a lake and still has plenty of water? Once you find such a lake, all 3 of us could move there. The swans agreed and flew off. After flying for several hours, they found the perfect lake. They returned to the turtle with the good news. फिर क्या हुआ? जब उन स्वॉन्स को ये चिंता होने लग गई तो टर्टल ने उन्हें एक आइडिया दिया कि मेरे पास एक आइडिया है कि आप दोनों उड़कर एक ऐसा लेक ढूंढो जिसका पानी अभी तक नहीं सूखा है.
तो फिर हम तीनों उसी लेक में चले जाएंगे और ये वाला लेक छोड़ देंगे। तो टर्टल की इस बात पे वो स्वॉन्स थे जो दोनों, वो एग्री हो गए और फिर वो बहुत घंटों तक उड़ते रहे। उनने कुछ लेक ढूंढा कि कहाँ पर वो जा सकते हैं और ये सब, और फिर उन्हें एक लेक मिल गया और वो बहुत खुश हो गए इस बात पे और वापस से रिटर्न हुए अपने पुराने लेक पर ये न्यूज़ बताने। किसको? टर्टल को। We have found a lovely lake which is full of water, said Mrs. Swan excitedly. But there's a problem. The new lake is too far for you to walk to it. The swans did not want to leave their friend behind. But how could the turtle reach there? The turtle thought for a while and came up with another plan. Can you find a strong stick? He asked the swans. You can hold it in your beaks. I will then hang on this stick with my mouth, and you could fly with me to the new lake. फिर जब उन्होंने ये बात टर्टल को बताई कि उन्हें एक नया लेक मिल गया है जहाँ पर पानी है, तो जो मिसेस स्वॉन थी उन्होंने ये बहुत एक्साइटेडली न्यूज़ टर्टल को बताई। पर इस बात में दिक्कत थी, जो नया लेक था जहाँ पर पानी था वो बहुत दूर था और आप सबको पता है दैट टॉर्टोइज एंड टर्टल्स कितना धीरे चलते हैं। और तो स्वॉन्स को इस बात की चिंता होने लग गई कि वो उनका जो फ्रेंड है टर्टल, उसे वो ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। पर टर्टल उधर तक कैसे आएगा, वो जगह बहुत दूर है। तो टर्टल को इस दिक्कत के लिए उसने एक प्लान बताया कि तुम क्या करो कि तुम एक स्टिक ढूंढो। उसने स्वॉन्स को बोला और वो स्टिक तुम दोनों अपने मुंह में पकड़ सकते हो। मतलब स्टिक का एक साइड मिस्टर स्वॉन पकड़ेगा और उसी स्टिक का दूसरा साइड मिसेस स्वॉन, और मैं क्या करूँगा उस स्टिक को अपने मुंह से पकड़ के उस पर टंग जाऊँगा। आई विल हैंग ऑन इट और फिर यू कैन फ्लाई, आप फ्लाई करना, आप उड़ना नए लेक तक और मैं उसे पकड़कर आप सबके साथ उधर जल्दी पहुँच जाऊँगा। ये आइडिया था। The swans liked the idea, though they were worried that the turtle might begin talking and fall off the stick. You must be careful not to open your mouth while we are flying with you, they warned him. Do you think you will be able to be quiet for such a long time? Of course, said the turtle. I will be careful. I know when not to talk. So the swans did as he asked. They found a strong stick and each swan held one end of it in its beak. The turtle held onto the middle with his mouth and they flew away. फिर क्या हुआ, स्वॉन्स को जब ये टर्टल का आइडिया पसंद आया तो उन्होंने एक मजबूत स्टिक ढूंढना शुरू करी। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस टर्टल से पूछा कि क्योंकि लेक बहुत दूर है और तुम ये स्टिक अपने मुंह में पकड़ोगे तो क्या तुम चुप रह पाओगे इतनी देर तक। हमने हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो जो टर्टल था वो बहुत ही टॉकेटिव टर्टल था, वो बहुत ज़्यादा बोलता था कि तुम्हें इतनी देर तक चुप रहना पड़ेगा और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम कुछ नहीं बोलो। तो टर्टल ने बोला कि हाँ ऑफ कोर्स मैं इस बात का ध्यान रखूँगा, मुझे पता है कि मुझे कब नहीं बोलना है। आई नो व्हेन नॉट टू टॉक। तो फिर स्वॉन्स ने क्या करा, जैसा टर्टल ने उन्हें कहा था वैसा करा। उन्होंने एक स्टिक का एक कोना अपने मुंह में पकड़ा और दूसरा कोना दूसरे स्वॉन ने पकड़ा और उस स्टिक को बीच में से टर्टल ने पकड़ा और वो उड़ने लगे। It was the most exciting thing that had ever happened to the turtle. He was amazed at the way by looking at the world from so far above the ground. He was longing to say something but remembered in time to keep quiet. जब वो सब हवा में उड़ने लगे तो वो जो टर्टल था वो बहुत एक्साइट हो गया, चौंक गया
इतनी सारी चीज़ों को ऊपर से देखकर, क्योंकि टर्टल तो एक लैंड एनिमल है, वो कभी ऐसे आसमान में गया नहीं, उड़ा नहीं, तो उसने ये सब देखा नहीं और उसे बहुत इच्छा हुई कुछ बोलने की, पर फिर उसे एकदम से याद आया कि उसे चुप रहना है. At last they reached the lake the swans had found it. It was a beautiful lake, large and blue with plenty of water. Oh look, the turtle began in excitement, remembering too late to keep quiet. The stick slipped from his mouth and he fell down from the sky onto the rocks below. The swan was sad to see their friend the turtle fall and hurt himself, only because he did not know when to stop talking. फिर क्या हुआ, आखिरी में जब वो लेक पर पहुंच गए, वो लेक बहुत ही सुंदर, बड़ा और बहुत सारा उसमें पानी था. तो ये लेक जब टर्टल ने देखा तो उसने एक्साइटमेंट में बोल दिया, ये देखो, और वो भूल गया था कि उसे चुप रहना है. और उसने जैसे ही अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से वो स्टिक छूट गई और वो गिर गया बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर. वो जो स्वॉन्स थे उन्होंने जब देखा कि वो गिर गया, वो बहुत दुखी थे अपने फ्रेंड टर्टल को देखकर कि वो गिर गया और उसे बहुत लग गई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे नहीं पता कि कब चुप रहना चाहिए. अडॉप्टेड फ्रॉम दी पंचतंत्र, मतलब अडॉप्टेड मतलब ये लिया गया है, कहाँ से, फ्रॉम दी पंचतंत्र. ओके, सो इस स्टोरी में क्या चीज हाईलाइट करिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट. हमें एज चिल्ड्रन हमारे एल्डर्स के सामने वो जो बोलते हैं वी शुड नॉट आर्ग्यू. ओके, इवन इफ वी आर नॉट एग्रीइंग टू देम, स्टिल वी शुडंट आर्ग्यू. हमें उन्हें प्यार से विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट से अपनी बात बोलनी चाहिए. दैट्स दी मोस्ट ब्यूटिफुल एटिकेट्स एक बच्चे के पास जो हो सकता है. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे. आप सब ये चैप्टर वापस से रीड करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हरे कृष्णा.